the PPTs I showed you. So fast, give me a thumbs up those who all have taken the snapshots and are ready to answer fast. Devashri is ready. Then who else is ready? Shivanjali is ready. Parth is ready. Why others? Ishan Banerjee, you were not there or what? Manthan? Huh? Gauri Aparachit, very good. Nidhi, you were there. Ishu, you were there. You should be answering my questions. And if you can't, then write it in the chat box fast. Okay? I'm going to go it is just going to be a rapid fire question. One cannot answer immediately. The next person will be asked. And then this is how we'll take a small recap and then immediately go to the PPTs which I have prepared now for you. Is that understood to you very well? Yes, sir. So now, basically, mitosis is shown by which kind of cells? Mitosis is shown by which kind of cells? Okay, Asin, fast answer. Unmute yourself and answer. Or write it in the chat box if you want to. Fast, I don't have time. You have to be very interactive. All cells, correct. All cells except the reproductive cells. That is gonads, that is testes and ovaries. Okay, right? What is interphase? What happens in the interphase? Is it a resting phase or it is actually something is happening over there? Sir, may I say? Please go ahead. Sir, interface where the growth doesn't occur but maturity comes. Okay, maturity. That means what is happening actually? Can anyone Parth fast? What is interphase? What is happening in the interphase? Sir, cytoplasm becomes large. Very good. Cytoplasm becomes large. Anything else is happening? Fast. DNA synthesis. DNA synthesis is taking place. Very good. Anybody else? It's a resting phase. Very good. Sharanya. But what is happening in that resting phase? Lot of activities are going on. Two daughter cells are produced. Two daughter cells are produced. Parth? Sir, no change in chromosomes. No change in chromosomes. No change in chromosomes. Shivanjali? No. Fast. Try to remember the set cycle. Cell cycle. G phase, G1 phase, S phase and G2 phase. So what happens in the G1 phase? Asin has already answered the question of G1 phase. I want what happens in the G2 S phase. Fast. See, boys. Sir, DNA synthesize. Very good. DNA synthesize. Something else also Asin happens over there regarding the chromosomes. I'm trying to divert you towards the question. What happens in the S phase? What? Chromosome duplicate, but Very good. Very good. The chromosomes deplete. Very good. From there we go to the S2 phase, G1 phase, G2 phase. What happens in the G2 phase? What happens in the G2 phase? Fast. It has to come now fast. I have explained it so thoroughly well. Yes, very good, Renuka. RNA and DNA is synthesized. Very good. Very good. Now from there we enter into mitosis, which is the first phase of mitosis that I explained you. Prophase. Prophase. What happens in the prophase? Fast. Nucleus disappear. No, not in the first phase, not in the early prophase. What happens in the early prophase? Fast. Chromosomes are formed. Chromosomes are formed. What happens then? Yes, they become distinct. What happens? Before that, something happens over there. Something is divided into two. Centrioles. Yes, centrioles with centrosome get divided from each other. Yes, what are they called are now? Are they called centriers or what they are called? The words asters. Where do the asters go? Towards the poles. Very good, towards the pole. What happens in the later prophase? Nucleus disappear. Very good, nucleus disappear. The nucleus and nuclear membrane disappears. What happens next? What is something formation takes place over there? Spindle fiber. Very good, spindle fibers take place. And the last part of the later prophase,
what happens over there? Yes, spindle formation takes place. What happens after the spindle formation? Nucleus and nuclear membrane disappears. अरे बच्चा, that happened. Nuclear membrane disappeared, spindle formation हो गया. अब कुछ तो भी होता है. Something joins to something. Centromere joins to spindle fiber. Yes, the chromosome join the spindle fiber with centromere in the center. What is the next phase I told you? What happens? Metaphase. 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 What happens in the metaphase? Something The happens in. chromosomes get attached to the spindle. Arey bacha, not there, Baba. That happened in the later prophase. In metaphase, something very, very important thing happens. Chromosomes line up in one at the equator. Very good. Chromosomes line up at the equator. So once that, now I'm very happy that you have been very interactive. From here, I start sharing my screen to you. Is everybody able to see the slide? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now I take you to the, we finished this cell cycle, we finished animal cells, and something I wanted to ask you. How is the things, are the prophase and all these prophase and metaphase, everything same in the plant cell? Sorry, sir. Is the prophase and metaphase same in the plant cell? Sir, Yes, only sir. almost they are same because the asters are not there in plant cell. Very good. Except that rest all the things which we see are same as that of the animal cell. So this is what we saw in the latter prophase. This is what we saw in the metaphase. Now something very striking is going to happen. That is, in the now the phase is the cell is entering into the early prophase, early anaphase. Now in this anaphase, what happens is that I'll just take you to the backslide so that it will be very easy for you. You see here the sister chromatids are there, correct? The sister chromatids have joined to the spindle fiber with centromere in the center. Now, I am not going to tell you. I want to see how many of you have a very keen observation about this slide. Tell me the observation you have made in this. So the sister chromatids split up. Very good. And they are now split up. They have now become equal single chromosome. Now they turn themselves into a single chromosome. Why do you think this would be happening? The entire ball game or the significance or the importance of mitosis lies on this phase. Why do you think that these sister chromatids, which were in 2 in number, are now getting split into 1 in number, single number? Why would this happen? So for cell division. That is there, it is happening because cell division has already started. But क्या importance क्या हो सकता है? जरा थोड़ा सोच के बताओ. I want everybody to participate because you understand this and the entire chapter is understood by you. थोड़ा सा दिमाग को तान दो, थोड़ा बस, ज्यादा नहीं. मैं हूं यहाँ पे, नहीं होता है तो फिर मैं चाहे जो गलत हो सही हो आंसर बताते जाओ. क्वेश्चन रिपीट कीजिए. मैंने बोला कि आपको देखो, आप मैं वापस वो स्लाइड दिखाऊंगा. एनाफेज में ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है. सिस्टर क्रोमैटिड्स का मतलब क्या है? 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, बराबर? हाँ. Yes, sir. अब यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्यों तैयार होता है? ये सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से? कुछ तो कारण होगा, कुछ तो साइंटिफिक रीजन होगा उसके पीछे. Sir, may I? Yes, please. Sir, to keep the same number of chromosomes in each nucleus. Bullseye, Parth, bullseye. I am so happy that you have understood this. देखो भाई, हमारे जो 2 डॉटर सेल्स तैयार होने वाले हैं उनके अंदर पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो मटेरियल है that has to go same. The same quantity of chromatin fibers should go to one cell and to the other cell also. और ये होने के लिए
यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये सेपरेशन क्यों होता है? तो अगर आप पहला वाला अगर तुम स्लाइड देखोगे तो स्पिंडल फाइबर्स बहुत फैले हुए थे, दे वर पोल्स अपार्ट, बट अभी यहाँ पे देखो स्पिंडल फाइबर्स श्रिंक होने लगे हैं, दे हैव स्टार्टेड टू क्लोज डाउन। ओके, राइट, दिस टू थिंग्स वेरी happen in the early anaphase. The chromatid fibers, sister two chromatids separate each other, और ये सेपरेशन होता है ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द और स्पिंडल फाइबर्स कमिंग वेरी क्लोज टू ईच अदर। और उसी वक्त ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, जैसे क्लोज हो जाते हैं वो, ये दोनों क्रोमैटिड्स को एक हिस्से को अपनी दाई तरफ खींचता है, एक बाईं तरफ खींचता है। सी दिस व्हाट हैपेंस, one set of chromosome is moving towards the one pole and one set of chromosome is moving to the other pole। और उसी समय कुछ एक स्ट्राइकिंग फीचर एनिमल सेल में हो रहा है, यहाँ पे एक डिप्रेशन फ्रॉम अपर साइड एंड फ्रॉम लोअर साइड डिप्रेशन आना शुरू होता है। इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं फरो फॉर्मेशन। ओके, राइट। छोटे, जब तुम छोटे थे तो वो क्ले के साथ तुम लोगों ने खेला होगा, हाँ, गुड्डी गुड्डियों वाला खेल। तो उसमें क्या होता है कि चपातियां बनाते हो तुम लोग उस राउंड की, और उसको दबाते हो और बीच में से उसको काट के दोनों को दोस्तों को देते हो, भैया ये तेरा शेयर ये मेरा शेयर। कभी खेला है ऐसा गुड्डा गुड्डी वाला खेल, वो क्रेयॉन के इसके साथ कभी खेला है? अरे भाई कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ तो सही यार। नहीं सर, नहीं। नहीं किया, अच्छा बराबर, ठीक है चलो। कभी माँ को पूरी करते हुए देखा है? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो माँ पूरी करते वक्त क्या करती है, पहला डव का गोल बनाती है, फिर उसको बीच में से प्रेस करती है, फिर क्या पराठा यानी आलू पराठा वगैरह करना होगा तुम, और फिर क्या करती है वो बड़े वाले गोल को बीच में से दबोचती है, तो दो गोल तैयार हो जाते हैं। फिर एक के ऊपर बैटर रख देती है वो, फिर उसका वो दूसरा वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर चिपका के उसको सील कर देती है। ये तो कभी देखा होगा। यस सर, Yes, sir. हाँ, तो वैसे ही जैसे वो माता जी आपकी जैसे वो डिप्रेशन डालती है उस डव के अंदर, उसी तरह से ये डिप्रेशन यहाँ से चालू हो जाता है। ओके, ये सिर्फ Yes, sir. एनिमल, हाँ ये सिर्फ एनिमल इसमें होता है। प्लांट सेल में वैसे कि वैसा सिर्फ क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर पुल टुवर्ड्स द पोल। ओके, अब जाके लैटर अब आता है टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या हो जाता है कि ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो बढ़ गई थी अब डिसअपियर होने लगती है और न्यूक्लियस वापस रिस्टोर हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस रिस्टोर हो जाती है। न्यूक्लियस के अंदर जो सिस्टर क्रोमैटिड का जो एक हिस्सा गया था यानी सिंगल क्रोमोसोम गया था, वो डिसइंटीग्रेट होके क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाता है और न्यूक्लियोलस भी मौजूद हो जाता है, यानी प्रॉपर न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमैटिन फाइबर्स, ये सब बन जाता है प्रॉपर न्यूक्लियस, और फरो डीपन होना शुरू हो जाता है। और तभी प्लांट सेल के अंदर इक्वेटोरियल प्लेन के पास साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्लेट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ये देखो, ये प्लेट फॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो गई। ओके, और ये फरो और डीपन हो गया, डीपन होते जाता है, और फिर जब आता है पूरा टीलोफेज कंप्लीट हो जाता है, उसको हम कहते हैं साइटोकाइनोसिस। अब साइटोकाइनोसिस में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा फरो फॉर्मेशन हो जाता है और एक सेल दो सेल के अंदर तब्दील हो जाता है। इट बिकम्स अ टू सेल, फ्रॉम वन मदर सेल टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन एनिमल सेल। और प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में प्लेट दोनों तरफ से बढ़ती है, कहां तक, जहां तक उसकी वॉल्स है, और वो वॉल्स को भी कट कर डाल देती है
और 2 डॉटर सेल्स तैयार हो जाते हैं। इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का स्प्लिट। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. समझ में आया, वेरी गुड। यहाँ पे एंड हो जाता है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस हमारा जो है उसके जनरल पॉइंट्स अगर हम लोग निकालने लगे तो ये होता है स्पेसिफिकली रिपेयर्स के लिए, ये होता है रिप्लेसमेंट के लिए, और ये होता है नए सेल्स बनाने के लिए, ग्रोथ के लिए। तो कभी आपको डिफरेंशिएशन आता है 1 मार्क का एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, तो 1 मार्क के लिए आपको 2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। एक है ये रिपेयर्स, ग्रोथ और इसका, और दूसरा होता है दैट इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर मेंटेन्ड इन नंबर थ्रूआउट द सेल डिवीजन इन ईच ऑफ द फेजेस। ये है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोसिस। और ये बहुत बार बोर्ड में ये क्वेश्चन, प्लीज ये अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो लिख लो, शॉर्ट आंसर्स के अंदर, यानी इन सेक्शन 1 में आपको ये जो क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द ब्रैकेट, तो आपको आता है इन ब्रैकेट सिग्निफिकेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ना ऐसा दिया जाता है माइटोसिस एंड मियोसिस, डिफरेंशिएट ब्रैकेट में रहता है सिग्निफिकेंस बिटवीन देम। अब ये सिग्निफिकेंस आपको, ये 2 पॉइंट्स आपको 1 मार्क के लिए इसके अंदर लिखने होते हैं, माइटोसिस के अंदर। और मियोसिस के अंदर क्या लिखना होता है ये मैं आपको अभी 2 मिनट में बता देता हूं इन आवर कमिंग नेक्स्ट स्लाइड। देखो, यू डोंट हैव टू स्टडी लाइक द फेजेस ऑफ माइटोसिस, fortunately you don't have to study the phases of meiosis, but if you see very correctly, this meiosis is called as a reduction division। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए गिव रीजन के लिए पूछा गया है, और ये हमेशा, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, why meiosis is called as a reduction division। देखो भाई, हमारे Excuse me, sir. yes, what is it? So why meiosis is called a? रिडक्शन डिवीजन। Okay, thanks. देखो, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जाइगोट जब बनता है तो आपको ऐसा लगेगा कि भैया, क्योंकि आपके मन में अभी तक तो माइटोसिस की वजह से यही होगा कि भैया पेरेंट, मदर से भी आता है, पेरेंट से भी आता है, फादर से भी आता है, और फिर आ जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया है कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द इसमें कहा है, आपने लिख लिया होगा कहीं तो भी, तो बहुत अच्छी बात है। 2n यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये 2n नंबर जो दिया है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। 2n इज इक्वल टू 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब आप मेरे को बताओ कि अगर आप फादर से भी 46 लोगे, मदर से भी 46 लोगे, तो जाइगोट में कितना आएगा? 92. हाँ, तो होता है क्या जाइगोट में, बेटे के या बेटी, जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 92 होते हैं क्या क्रोमोसोम्स? नहीं, उसके अंदर कितने होते हैं? उसके अंदर 46 ही क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये करिश्मा कैसे हुआ? तो ये करिश्मा ऐसे हुआ भाई लोग कि फादर से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिए जाते हैं, मदर से हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिए जाते हैं, और फिर इसको 2n बनाया जाता है। समझ में आया? 46 का हाफ कितना है रे? 23। 23. तो 23 पापा से आता है, 23 मम्मा से आता है, और फिर जाइगोट के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यही बात इन्होंने यहाँ पे बताई है, देखो। ओके, ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे आया? n फ्रॉम फादर, n फ्रॉम मदर। ओके, समझ में आया? और Yes, sir. फिर ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है, और फिर ये 2 सेल्स तैयार हो जाते हैं और मर्ज होके हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स तैयार हो जाते हैं। ओके, एंड देन यू हैव, इसलिए वो जो हाफ रिडक्शन होता है क्रोमोसोम्स का,
इसीलिए इसको मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहा गया है। ये गिव रीजन बहुत VVIMP है, 100 टाइम्स पूछा गया, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है, क्योंकि मियोसिस के ऊपर उनको पूछने के लिए कुछ है ही नहीं। बस यही एक गिव रीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। एक क्रॉसिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर। अभी आप मेरे को पूछेंगे कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो भैया जो पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम्स होते हैं वो दिखने में जो क्रोमोसोम्स का साइज एंड शेप एक जैसा हो उसको उसको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, लेकिन ये अपोजिट सेक्स से होता है। एक होता है पापा की तरफ से और एक होता है ममा की तरफ से। अब जब सेल डिवीजन हो रही होती है मियोसिस, तो ये मियोसिस के वक्त क्या हो जाता है, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बहुत नजदीक करीबी आके बैठ जाते हैं एक दूसरे के, और उसके वजह से क्या होता है, कुछ जेनेटिक मटेरियल जो है वो पापा से ममा के क्रोमोसोम में चला जाता है और ममा के क्रोमोसोम का थोड़ा मटेरियल पापा के क्रोमोसोम में आ जाता है। देखो यहाँ पे ये हो गया, ममा का थोड़ा पार्ट पापा को मिल गया और पापा का थोड़ा पार्ट, और ये है क्या है, ये DNA है, ये जीन्स है। हाँ, ये जीन्स Yes, का, sir. हाँ, और मैंने पहले ही बताया था कि जीन्स क्या है, जीन्स आर द वंस हु आर द स्पेशल सीक्वेंस ऑफ DNA representing a particular protein which gives characteristics। और इसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हमको मिलती है, ट्रेट्स हमको मिलते हैं। ओके, इसीलिए पापा के ट्रेट्स हमारे में आते हैं, और फिर जब बच्चा पैदा होता है, अरे कितना पापा का जैसा दिखता है, अरे ये तो बिल्कुल पापा है, अरे ये तो बिल्कुल मासी है, क्योंकि कुछ जो पेरेंटल ट्रेट्स है वो एक्सचेंज हो चुके हुए हैं। ये पापा के पास, अगर ये मम्मी के पास जो ये होंगे, उसके ऊपर उसके पुरखों के, यानी हर 4 फादर्स के भी जीन्स होंगे उसके DNA के ऊपर, तो कुछ उधर उसमें से भी आ सकते हैं। और ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, इस चीज को बोलते हैं, ये जो चीज है इसको बोलते हैं चायस्मा। और चायस्मा के पास, चायस्मा में ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, क्रोमैटिड एक्सचेंज देयर पार्ट्स, the chromatids exchange their parts, and that is nothing but the chromatids exchange their DNA material. That is nothing but the exchange a sequence of DNA trait, DNA material. That is nothing but they're exchanging the genes, and that is why the genes come into mama. And इसलिए हमेशा interracial या intercaste marriages are more preferred, क्योंकि ऑफस्प्रिंग्स जो पैदा होती है उनमें नई वैरायटी आती है, नए ट्रेट्स दिखते हैं। सो यू गाइज आर फ्रॉम द 20th century, नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हाई यू गेट सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यानी कलर कॉम्बिनेशंस। ओके, यानी वाइट को ब्लैक लड़का भी हो सकता है, that's only because of the paternal chromosome क्रॉसिंग ओवर के वक्त ट्रेट्स चेंज हुए। लेकिन अगर यही चीज होती है कि वैरायटी, सी क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग द मियोसिस टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशंस, ये न्यू कॉम्बिनेशंस तैयार करता है। इसीलिए पंजाबी ने कभी मारवाड़ी के साथ करना चाहिए, मारवाड़ी ने मराठी के साथ करना चाहिए, बट देयर हैज टू बी अ चेंज if you want to prepare your future generation more healthier, more smarter। ये क्रॉसिंग ओवर्स बहुत जरूरी है। ये है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। ये 2 मार्क के लिए ये पूछा जाता है या 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, या तो फिर जैसा मैंने बताया वो 2 मार्क का या 1 मार्क का डिफरेंशिएशन। क्रोमोसोम नंबर इज हार्ड, नेवर से हाफ, इट इज हार्ड। और एक बात स्टार मार्क करके लिख लो, ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये शब्द बिल्कुल यूज नहीं करोगे। whenever the things is with
नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही होगी तो नोई, हाँ, नंबर ऑफ सेल की बात हो रही होगी तो डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल या हैप्लॉयड नंबर ऑफ सेल, ये ठीक है। क्रोमोसोम के साथ प्लीज फॉर कदर से भी आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, इसका मतलब कुछ और हो जाता है, साइंटिफिकली इसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए Yes, sir. कि whenever the number of chromosome is discussed, whenever the number of chromosome is discussed, please do not use words like haploid and diploid. Use either words like halved or made to half, या full number of chromosomes, या normal number of chromosome, यही words करोगे। तो सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस क्या है? मियोसिस होता है इसलिए कि गैमेट सेल्स में, यानी टेस्टिस यानी स्पर्म और ओवा में, स्पर्म से आधे और ओवा से आधे नंबर ऑफ गैमेट्स लेके जाइगोट के अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिस्टोर कर सके। The chromosome number is halved in the gamete cells so that on fertilization the normal number of 2n is restored. Okay, the normal number of 2n is restored, right? Then it provides for fixing up genes which occurs. अभी ये fixing of genes दो तरीके से होता है, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है। The maternal and paternal chromosomes get mixed up. ये जो पहला वाला जो हुआ यहाँ पे कि आधे क्रोमोसोम्स पापा से आए, आधे क्रोमोसोम्स मम्मी से आए, तो यहाँ पे जो रिडक्शन हुआ ये पहला रिडक्शन डिवीजन है। ओके, then during the first reduction division, as they separate from the homologous pair, and then crossing over, while the maternal and paternal chromosomes are separating, वो separate जब हो रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनका जो क्रोमेटिड मटेरियल है वेरी ऑफन एक्सचेंज हो जाता है बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और इसके अंदर से क्या होता है, रिजल्टिंग इन द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हैज एवरीबडी अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, नाउ जस्ट टेल मी कि लास्ट पार्ट खत्म करके फिर मैं आपके पास आता हूं। ये आपकी गीता है, ये आपका बाइबल है, ये आपका कुरान है, ये आपका जो भी कुछ मानना हो, ये पूरा ये चैप्टर इस डिफरेंस में बटा हुआ है। एक एक मार्क के लिए फिल इन द ब्लैंक, स्मैश द फॉलोइंग, ऑड मैन आउट, ट्रू और फॉल्स, फिर एनालॉजी, सब तरीके के क्वेश्चंस में इसका वापर किया गया है। तो हम देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस पहले कहां पे होता है। माइटोसिस होता है बॉडी सेल्स के अंदर, जिसको सोमैटिक सेल्स या ऑटोसोम्स भी कहा गया है, लेकिन ऑटोसोम्स से ज्यादा भी बेहतर होगा शब्द सोमैटिक सेल्स। ओके, दूसरा है मियोसिस, यानी वही वेयरएज मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जिसको हम गोनाड्स बोलते हैं, मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। ये क्यों होता है? व्हाट फॉर? टू प्रोवाइड ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। ये होता है सिर्फ और सिर्फ गैमेट फॉर्मेशन के लिए। स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं इन मेल्स और ओवा जो प्रोड्यूस होता है इन फीमेल्स। व्हेन डज इट ऑकर? इट ऑकर्स कंटिन्यूअसली। माइटोसिस आपका लास्ट ब्रेथ चलने तक, आपके जान में जान है तब तक
माइटोसिस चलते रहेगा. ओके. ओनली इन द रिप्रोडक्टिवली एक्टिव एज, जब तक देखो भाई, जैसा कि फीमेल्स में मेनोपॉज होता है. मेनोपॉज कैसा होता है? बच्ची जब जन्म लेती है, जैसे ही वूम से बाहर निकलती है, तो भगवान जी तो बहुत ग्रेट है, उन्होंने उसी समय उसको वरदान दिया हुआ है, और उसी समय उसके ओवरी के अंदर 40,000 oocytes यानी ऊ सेल्स भर के रख छोड़े उसकी ओवरी के पाउच में, दोनों ओवरीज में. लेकिन वो वरदान तभी यूज करना है जब आपका रिप्रोडक्टिव एज शुरू हो जाएगा. जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू हो जाता है आफ्टर 12th एज, और बाय 18th एज आप फिजिकली और सेक्सुअली तैयार हो चुकी हैं, तभी आपको ये यूटिलाइज कर सकते हैं. और उसी तरह से मेल्स का, जब आपका समाइनल फ्लूइड सीक्रेशन शुरू हो जाएगा, तभी आप ये सब कर सकते हो. और उसके लिए भी एक एज लिमिट है, जैसा कि 45 और 50 इयर्स के बाद ये एग्स का जो आपका भंडार, जो भगवान ने जो आपको वरदान दिया है, वो वरदान खत्म हो जाएगा. इट विल गेट ओवर, एंड देन यू विल नॉट बी इन नो वे इन पोजिशन टू कैरी ऑन. हम ये सब पढ़ने वाले रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसको मेनोपॉज बोलते हैं. एंड देयर इज अ सेम थिंग, मेन के अंदर भी लिपिडोज कम हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते. The number of daughter cells produced, there are 2 daughter cells produced from one single cell. There are 4 daughter cells produced from one single cell. The number of chromosome, full set of chromosome is passed on to each daughter cell. That is 2n number of chromosomes. Please avoid using this word diploid. This is wrongly printed in all the books. Please don't use this. And this is the instruction not from my side. This is the instruction from council. So please don't use it. You will lose your marks unnecessarily. बस इतना ही बोलना. Full set of chromosome is passed on from one to each daughter cell. Okay. Only yes. सर अगर हम डिप्लॉयड यूज करते हैं तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है? ये I really honestly don't know why they have stopped it to use it, but I'll also find it out and let you know. But this is the instructions which have come to me from my Bombay head office in my school, that council has asked you to stop using words like diploid and haploid. Now, why they have not given me the reason for it, I'll Google it out and next time I'll surely tell you. Okay? Okay, sir. Now, only half the number of chromosome, only one member of from each pair is okay. So you just remember this: half number of chromosomes are transferred to the daughter cell. Then number of nuclear division, it goes under only one nuclear division, whereas it undergoes 2 nuclear divisions. Then identity of chromosomes and genes in the daughter cell, they are identical. They may be randomly assorted. Now this point nobody asks you generally, okay, because that's only for the higher standards, because it's very randomly, it's very absurdly given here, but don't worry about it. You remember these first 6 points, by heart them like a mantra. You will not even lose half mark, I'm telling you, from this. And learn all your diagrams, practice them. Don't do freehand practice of diagrams. Use rounders. If you don't have girls rounder with you, use kada. But boys, you should have a rounder with you. Okay? Because when you enter into the hall, your pouch is thoroughly checked. You have to take inside with you a transparent pouch in which only rounders, and that is compass material, is allowed. Rest all is taken away from the pouch. They thoroughly check, because for
By next year, you will. We hope that you will be able to give the physical exam. You will understand. For each 4 rows, there are 2 invigilators plus 1 central invigilator sitting in the center top, viewing you from the top. So please use rounders, use nice pencils, use everything. Now I'm taking you back to the metaphase. Start taking the pictures of these. Okay, you have taken have you taken up to, first tell me, has everybody taken right from interface, or do you want me to show you right from the interface so that you will take these snapshots? Sir, but we have the book, so I should Sir, Acha, take the you have pictures. okay, fine. The reason why I was giving you this snapshot was, till that last time, some people were not having books, some people were having books. That was a big confusion in the meet. Now, please, tell me, do you want me to allow you to take the snapshots, or you don't want me to allow you to take snapshots? Sir, don't want. No. Don't want? Okay, that's a great thing then for me. My trouble is saved, my dear friends. Okay. Now, most important thing, I don't know how many of you have purchased certain things, but I want you to have these things in your, in your, क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारी पर्सनल लाइब्रेरी में होना चाहिए ये सब. Either past 10 years book, past 10 years question bank book, board exam book, and either Oswal or Agarwal, या तो ओसवाल का या तो फिर अग्रवाल का सेल्फ स्टडी होना बहुत जरूरी है. They, in that you will get so many extra questions, so many job sheets, so many questions to solve, plus diagram based questions, different types of diagram based questions. Now, as a homework today, which I'm going to give you as a homework, I want you all people, you have got books now. I have explained you thoroughly well. Okay. You will solve all the objective type of questions plus all the progress check. Please do these progress checks thoroughly well. Please. Done, sir. The reason is that many questions in the objective section 1 are asked from this progress check. Right? And second thing is that, so you try to solve all the questions below. So what do you want me to do? Should we discuss those objective type of questions which are there, so that you can immediately with the pen and pencil start writing here itself in the meet, or do you want me to take you to the next chapter? Sir, next Sir, chapter. next chapter. We will do it. You can take us to Discuss. Next chapter. हाँ, Next chapter sir. you want? Okay. Fine. Then in that homework, and you will do it and judiciously. I'd asked someone something to be kept with Omkar sir. I said that I'll collect it from sir. Did everybody do that? What I'd asked, does anybody remember? Last time I'd asked you to keep something in with Omkar sir, no? With biology. Some homework I had given on biology. I said I'll collect it from Omkar sir. I forgot what I'd given. Or can Sir, somebody you help had me? given for geography. I had given for geography. Fine. So now you take this homework for, you will solve all progress check questions and objective questions in your textbook itself. But with the proper diagrams as given in the textbook, you will solve all structured questions below the book in a notebook and keep it in at sir's office
one day whenever I am having time, or you just keep it with you, but I want you to show me the work done, each of you, in the next meet. Will that be a promise, gentleman's promise given to me? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, sir. So all structured questions, I will be asking everyone to unmute your camera and show me the work which you have done. So you have got one complete 1 week from today onwards. Okay. So that Yes, sir. so that you can complete all the structured questions. There are almost 9 structured questions. So even if you solve 1 or 1.5 question per day, you will be able to finish up next time. So I'm now stopping my presentation so that I can open up my next PPT for the next lesson. Which is the next lesson? Absorption by the roots. So, Sir, next chapter is genetics. Oh, we finished absorption by roots, no? 10th standard? No, sir. no, sir, we didn't finish it. That is what I said. The next chapter should be absorption. Next chapter is not genetics. Let us see. Fine, even if it's genetics also, I have no problem. I don't know as per your new textbook. I don't know about your new textbooks because I have an old edition with me. So yes, the Um, third chapter is genetics. Sir, in new Okay. book, third chapter is genetics. Okay, third chapter is genetics. Fine. No issues. So then we'll start with genetics. One of the most interesting part of it and very interesting lesson. But before that, I want to tell you a story. I'll just open up my genetics this thing. Excretory system, cell cycle, absorption, circulatory, digestion, environment, genetics, new. Or just a minute. New PPT for genetics. Oh. Just give me some time. I'm trying to open it. Yes, sir. Okay. Back to you, Am. Yes, sir. Right. Now that we have studied about the chromosomes, we have studied about the genes. I've used this definition several times. And I want somebody to be participant in telling, some participant try to tell me what is genes, exact definition of genes. I do not want that generalized definition. First. Yes, Devashri, go ahead. You want to tell? You raise your hand. That is why I'm asking. Parthoba. So the Zopla. transmission of the body features from the parents to the offsprings. That is not genes. That is hereditary, Baba. Somebody tell me a proper definition of genes. You have books with you. Open up them. The first chapter, chromosome, structure of chromosome. Last part, there is a definition of gene. At least have common sense of using it and opening and reading it, Baba. Somebody do that. Chalo, Garima or Renuka or Ishu. First, Sia. Yes, sir. Somebody do it fast. Shivanjali. Yes, Genes go ahead. are Renuka, just a minute, beta. Your voice is echoing. Can we ask someone else to do the needful? Shivanjali, please read fast. Yes, sir.
Genes are specific sequences of nucleotides on a chromosome that encode particular proteins which express in the form of some particular feature of the body. Correct. So they are the sequence of nucleotides which express a certain form of a protein which impart the hereditary characteristics. Very good. This concept is fully understood. Concept of nucleotide, everything gone into the head. So Yes, good. sir. Okay. So now I want you to, if you want, there is a big story behind this. So I want you all to unmute your cameras and show to me so that we can have a little one-to-one interaction. Chalo. Done, sir. Fast, I want everybody to unmute your cameras and so that we can have a nice story listening. Okay. Fast, Garima, Ananya, everybody, Gauri, everybody I want. Because उसके बिना ये चैप्टर का मजा तुमको नहीं आएगा. You will not enjoy the fragrance of this chapter. चलो देवश्री, असीम, गरिमा, I don't have time बाबा. रेणुका, हाँ? चलो गौरी फास्ट बेटा, निधि, मंथन, पार्थोबा किधर है भाई, गया क्या बाहर? Sir, I am here. हाँ तो भाई क्यों नहीं दिखा रहा तेरा चेहरा? लड़की है, शर्मा रहा है? हाय हाय, क्या बात है? Okay, now without wasting time, let's start the storytelling time. Okay, see, Grigor Mendele was born in 1822. That was a time when Renaissance was in the full peak. And everybody was getting into a mood of education. Everybody was in the mood of learning, have high attitude. ऐसा क्यों भाई? हम क्यों माने ये चीज ऐसी? आप कहोगे हम मान लेंगे? नहीं भाई. We want scientific reasons for that. Okay. And then when the people started this in Austria, this gentleman Grigor was belonging to a very poor family. वैसे भी ऑस्ट्रिया देश बहुत पुअर था. ओके, राइट? और उस पुअर देश में ऑलरेडी, लेकिन उस देश के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे. एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे. आप यकीन नहीं मानोगे, अगर उस जमाने में किसी को टीचर बनना होता था तो अपने ग्रेजुएशन के बाद अपने देश की एक एग्जाम होती थी. दे यूज्ड टू हैव अ एग्जाम. उस एग्जाम को अगर आपने पास किया आपने वो, तो ही आपको अलाउ किया जाता था टू बिकम अ टीचर. अब ये साहब थे, इनको बनना था एक टीचर साइंस का, वो भी साइंस और मैथ्स का. बड़ी मुश्किल से हालातों से गुजरते गुजरते साहब ने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, फिर गए और एग्जाम दिया. बट अनफॉर्चुनेटली इस बंदे को वो एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं जमा. पुअर मैन कुड नॉट क्वालिफाई द एग्जाम. और वहीं पे उनके टीचर बनने के सब चांसेस रद्द हो गए, बंद हो गए. सर वो एग्जाम एक ही बार देना चाहिए. हाँ, बस एक ही चांस मिलता था जिंदगी में आपको. भैया उस जमाने के लोग बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे. ऐसा नहीं कि भैया आप आईआईटी के लिए 4 बार भी बैठो तो चलेगा, ऐसा नहीं था. एक बार गया. अब इसके बाद बहुत मायूस हुए ये साहब, और इन्होंने क्लर्जी बनना पसंद किया. यहाँ पे किसी को मालूम है क्लर्जी का मतलब क्या होता है? असीम, No, आप sir. कहाँ चली गई? तो अनन्या कोई है? हाँ, पार्थ, सर मंथन? द वन हु स्टडीज जेनेटिक्स. नो. Sir, Huh? male priest.
Very good. Who gave it that? Sharanya gave, I suppose. Answer. Yes, sir. Very good, Sharanya. उस जमाने में क्लर्जी रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट को बनना, जो बनते थे, उनको कहा जाता था, और उनको क्या रहता था कि दे हैड टू बिकम, उनको अजन्म ब्रह्मचारित्व का पालन करना पड़ता था. दे हैड टू बिकम लाइफ टाइम, दे नेवर कुड मैरी. एंड उस जमाने में क्या था कि देयर वर मोनेस्ट्रीज. मोनेस्ट्रीज यानी क्या होता था कि ये लोगों को कॉमन मैन जो था उनसे अलग रखा जाता था, क्योंकि मोह माया इसके अंदर वो चले न जाए, टेम्पटेशंस के अंदर चले न जाए. इसलिए इन मॉन्क्स का जो रहने की जगह हुआ करती थी वो कहीं कहीं दूर हिल्स पे मोनेस्ट्रीज तैयार की है, या कहीं बहुत ह्यूमन विसिनिटी से बहुत दूर ऐसे जगह पे चर्चेस बांधते थे, और वहां पे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था. अब वो ट्रेनिंग कैसा, यहाँ पे से किसी ने अगर पांडव लेने गए होगा, तो पांडव लेना में कैसे वो गुफाओं के साथ ऐसा विहार जो बना हुआ है ना, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए, वैसे वो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में वो एक टेबल, कुर्सी, पानी पीने का जग, खाने की प्लेट, एक खाट, और ये सब उनको वहां पे रखा जाता था, और वहां पे उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी. साइड बाय साइड उनको खाना भी अपना ही बनाना पड़ता था. ये हर मोनेस्ट्री के पास अपना एक कोर्टयार्ड रहता था, कोर्टयार्ड. ये कोर्टयार्ड के अंदर ये लोग, मोनेस्ट्री के लोग, फल सब्जी, जो भी अपने सेल्फ सफिशिएंसी के लिए जो भी कुछ चीजें चाहिए होती थी, वो वहां पे ग्रो करते थे. अब इसका जिम्मेदारी ग्रिगोर के ऊपर आ गई, और जब ग्रिगोर गया तो वो लोग वहां पे पीस ज्यादा खाते हैं, पी वटाना. ओके, तो उसने देखा, अरे यार, एक ही टाइप के पौधे थोड़ी है, कोई नाटा है, कोई ड्रॉफ है, फिर भी पीस प्रोड्यूस कर रहा है, कोई टॉल ट्री है, फिर भी पीस प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ, कोई किसी के ऊपर पीले फूल है, फिर भी पीस प्रोड्यूस कर रहा है, किसी के ऊपर व्हाइट और पर्पल कलर के फ्लावर्स है, फिर भी पीस ही तैयार कर रहा है. अब उसने क्या किया कि इन लोगों को क्रॉस पॉलिनेट करवाया. क्या किया, ड्रॉफ वाले के साथ शादी करा दी, टॉल वाले प्लांट के साथ, और फिर उसकी प्रोजनी यानी ऑफस्प्रिंग देखने के लिए बैठ गए. फिर जो व्हाइट कलर का फ्लावर था उसको पॉलिनेट करवाया, सेल्फ पॉलिनेट, पर्पल कलर के साथ, पर्पल वाले को रेड कलर के साथ, ऐसा कॉम्बिनेशंस करते रहे. और ताज्जुब की बात आपको ये सुन के बहुत ये होगा कि भैया सब जगह पे मटर ही आए. एवरीवेयर जो ऑफस्प्रिंग तैयार हुआ, दैट वाज मटर, दैट इज पी फ्रूट. और फिर जाके ग्रिगोर मेंडल ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट करा, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जो सिमिलर लोग हैं जेनेटिकली, वो अपने ही काइंड का ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे. ना कि बिल्ली शेर को जन्म देगी, और ना ही चूहा हाथी को देगा. चूहा चूहे को ही देगा, हाथी हाथी को ही जन्म देगा. लेकिन जन्म देते वक्त एक चीज जरूर उसने ऑब्जर्व करी, और वो उसने एक कही कि दे विल नॉट बी द जेरोक्स कॉपीज ऑफ ईच अदर. अभी ये जेरोक्स मैं अभी का वर्ड यूज कर रहा हूं, बट दे विल नॉट बी द आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, बट they will have certain similarities in them. अच्छा, आप लोग नासिक में रहते हो, कभी, हाँ, कभी पंचवटी साइड कभी जाना हुआ होगा, या कभी पेठ रोड, या कभी
टुवर्ड्स गुजरात की तरफ अगर आप गए होंगे सापुतारा, तो देखो वहां से बहुत सारे गुजराती काठियावाड़ी लोग बहुत सारी गाय अपनी गायें लेके आते हैं. दे कम टू नासिक. ओके. यस सर. हाँ, तो ये सब गाय, जो गाय है काठियावाड़ी गाय, सब ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन और व्हाइट कलर की. आप 2 मिनट के लिए अगर आप देखोगे क्या, तो आप एक माँ को, गौवा माँ को और उसके बछड़े को भी देखोगे, दोनों का कलर सेम होगा, लेकिन फिर भी आप डिफरेंस कर पाओगे कि वो गौवा माँ है और वो बछड़ा है. क्योंकि भले वो माँ का रंग लेके आया हो, लेकिन चाहे तो उसके सींग बड़े होंगे, या तो फिर सींग नाटे होंगे, या तो फिर पूंछ के बाल ज्यादा होंगे, या तो फिर व्हाइट पैच होगा बीच में कहीं तो भी, यहाँ पे कहीं तो भी ब्राउन स्पॉट होगा, यहाँ पे कहीं तो भी व्हाइट पैच होगा. ऐसे वेरिएशंस आपको मिलेंगे. दैट मीन्स आप आपके पेरेंट्स की जेरॉक्स कॉपी नहीं है, लेकिन फिर भी फोटो में देखने के बाद आज भी मेरे मामा लोग कहते हैं, अरे यार ये तो अपने पूरे के पूरे मैटरनल होम पे गया हुआ है. आज भी अगर आप यकीन नहीं, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन पुणे मेरे मामा जी के पास, तो हम लोग ऐसे ही टहलने को जाते थे शाम को. आई वॉज इन समवेयर इन 11th और 12th स्टैंडर्ड. मेरे मामा जी काफी फ्री थे उस मेरे से, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम था हम दोनों में. तो लोगों को कहना, लोग पूछते थे, अरे आप इनके छोटे भाई हैं क्या? तो एक बार तो ऐसा हो गया कि मामा जी अकेले ही चले गए थे घूमने के लिए, तो एक बुजुर्ग ने पूछा, अरे तेरा छोटा भाई नहीं गया है क्या आज घूमने के लिए? तो इतना सिमिलैरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आ जाता है, जीन्स के अंदर होता है, जो हमको हेरिडिटरी मिलता है. तो ये जो हमको विरासत में जो ऑफस्प्रिंग्स को कैरेक्टर्स मिलते हैं, उसको कैरेक्टर्स या ट्रेड्स बोलते हैं. और ये जो एक ऑफस्प्रिंग को अपने पिछले जनरेशन से जो मिलता है, उसको हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं. और ये मिलता है हमको जीन्स के वजह से, जो हम लोग ने देखा है कि हमारे डीएनए के ऊपर एक सीक्वेंस के अंदर लिखी हुई है. और इसीलिए भाई आप गर्ल्स को तो बहुत चांस होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ, यस इवन बॉयज, ये तुमने एक्सपीरियंस भी करा होगा कि कोई तुम्हारी सिस्टर या तुम्हारी कोई चाची या मामी जो जस्ट डिलीवर हो चुकी है, हो चुके हैं, तो जब बच्चे का नामकरण विधि होता है ना, तो ये सब बूढ़ी औरत आके ना बोलती है, अरे कितना दादा के ऊपर गए, कितना मासी के ऊपर गए, अरे ये तो हमारे दादाजी पैदा हुए हैं, इनको कुछ मत करना. ये सब क्यों होता है? कितना अपने बाप पे गए, नाक तो देखो माँ के जैसी है कि नहीं? ये ऐसे कमेंट सुने या नहीं सुने? सुने सर. शरण्या Yes. शरण्या हंस रही है, तो शायद शरण्या ने ये जरूर सुना होगा. हाँ असीम, सुना है कि नहीं सुना है नामकरण विधि के वक्त? आई एम श्योर हर किसी ने Yes, सुना sir. होगा. हर किसी ने सुना है, मैंने भी सुना है, हर कोई सुनता है, क्योंकि हर किसी दादी को लगता है बस दूसरा दादा ही पैदा हुआ है, या दूसरा चाचा ही पैदा हुआ है, ओके, या मामा ही पैदा हुआ है. सो डोंट वरी अबाउट इट. ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे में जो सिमिलैरिटीज है वो होती है ट्रेट्स. और ये सिमिलैरिटीज कौन से ट्रेट्स में दिखी जाती है? कौन से ट्रेट्स में दिखी जाती है? बालों का कलर, बालों का टाइप, घुंघराले है या स्ट्रेट है, आईब्रोज जुड़ी हुई है या सेपरेट है. हाँ, फिर ये नकल्स है ना, ये इसको बोलते हैं नकल्स, इसको बोलते हैं नकल्स. ये देखो, आप ठीक से देखोगे, मैं इसके ऊपर मेरे हेयर है, मेरे नकल्स के ऊपर, इनके ऊपर हेयर है नहीं. फिर लालू प्रसाद यादव, कान के ऊपर बाल है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं? मुस्टैचेस मेरे जैसी ऐसी थिक है या तलवार छाप है, सिर्फ लाइन? हाँ, बराबर. कलर ऑफ आईज, वो तो बहुत. फिर कलर ऑफ स्किन, भैया एकदम गोरा है या मेरे जैसा डांबर वाला परफेक्ट कलर, भैया धोने से भी नहीं निकलेगा. हाँ,
ऐसा वाला कलर, ये कलर वाले जो कॉम्बिनेशंस जो है, ये सब जो चीजें हैं ये ट्रेट्स की वजह से आती है, और यही साहब हमारे ग्रिगोर मेंडल साहब ने बताया। बट स्टोरी ये सब ग्रिगोर जी ने बताया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जब अपना पेपर प्रेजेंट किया, you know, every scientist has to prepare a paper for himself and he has to present that paper to get it approved. Unfortunately ये पेपर रिजेक्ट किया गया, he was not recognized, उनके काम को झूठा बतलाया गया, ये कुछ भी बोल रहा है, ये पागल हो गया है, ऐसे उसके काम को धुतकारा गया, और इसी डिप्रेशन ग्रिगोर मेंडले ने अपना लास्ट ब्रेथ लिया। लेकिन कुछ सालों बाद 3 अलग अलग कंट्रियों में, मैं नाम भी बता दूंगा, मेरे पास लिखे हुए थे, अभी वो बुक नहीं है मेरे सामने, मैं 3 अलग अलग कंट्रियों में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने ग्रिगोर मेंडले के नोट्स यूटिलाइज करके, उन्होंने किया था वही काम, उनके ही नोट्स रिफर करके वही एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जो ग्रिगोर जी ने किए थे, और आपको ताज्जुब होगा कि वो सब एक्सपेरिमेंट 100% जैसे ग्रिगोर ने लिखे थे वैसे के वैसे ही हुए। और फिर जाके देखो कितनी आयरनी है, फिर जाके मरणोपरांत नोबेल प्राइज जेनेटिक्स का इस महान फादर ऑफ जेनेटिक्स को मिला। ओके, आई थिंक टुडे I have ended up with a beautiful story. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स हैं तो मैं बोलता हूं उतने पेज नंबर्स आप पढ़ लेना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ग्रिगोर मेंडले, ऑस्ट्रियन मॉन्क, हेरिडेटरी, फिर वेरिएशंस इन पॉपुलेशन, ओके, वो येलो बॉक्स, इनहेरिटेंस ऑफ इन ह्यूमंस, ओके, एंड क्रोमोसोम्स, कैरियर्स ऑफ हेरिडेटरी। यहां तक पढ़ लेना, यहां तक मैंने आपको आज समझा के दिया है। नेक्स्ट टाइम और भी इंटरेस्टिंग थिंग्स है जो करने में और सीखने में और मजा आएंगी जेनेटिक्स में। टिल देन, सायोनारा, हैव अ गुड डे।